हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। क्योंकि देखिए जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आई नो कि उनके पास समय अब बहुत कम बचा है। क्योंकि जनवरी में आप लोग जानते ही हैं कि आपकी सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाली है। तो मैं आज आप लोग को जो जिनका भी पेपर सेकंड पेपर इंग्लिश है या फर्स्ट पेपर इंग्लिश है, उन दोनों के लिए ही मैं इंग्लिश करवा रही हूँ आज आप लोग को, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो स्टार्ट करेंगे बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गीता देखिए यहाँ बोल रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग, would I complete the sentence by filling in the blanks, choosing one of the given alternative. Okay. First questions, Gita was known to be a dash, so nobody interested any important work to her. तो इसमें आपको ये चारों दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें सबसे सूटेबल क्या लगता है, जोकर, वर्कर, शॉकर, श्रीकर। तो क्या लग रहा है फ्रेंड्स आपको। तो इसका जो हो जाएगा वो श्रीकर होगा। ठीक है। तो गीता वॉज नॉन टू बी अ श्रीकर, सो नो बडी इंटरेस्टेड एनी इम्पॉर्टेंट वर्क टू हर। तो आप लोग को श्रीकर का मीनिंग मैं बताती हूँ। श्रीकर मीन्स होता है समवन हु अवॉइड वर्क। ठीक है। तो जब वो खुद ही अवॉइड कर रही है तो कोई क्यों हेल्प करेगा, है ना। नेक्स्ट है, द पुलिस sprayed tear gas on the protesters। तो क्या हो जाएगा, indirectly, intensively, indifferently या indiscriminately। तो क्या होगा इन चारों में। तो 32 का जो होगा फ्रेंड्स हो जाएगा डी, indiscriminately। The police sprayed tear gas indiscriminately on the protesters। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको बोल रहा है रीड गिवन पैसेज केयरफुली, और उसका आंसर बोल रहा है, तो लॉन्ग एगो मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम लुकिंग फॉर फूड, दे एट एनीथिंग दे कुड फाइंड, सम लिव्ड मोस्टली ऑन प्लांट, दे एट fruit, stem and leaves of some plant and root of others. When food was scarce, they ate the bark of tree. If they were lucky, they would find a bird's nest with egg. People who lived near the water ate fish or anything that was sore, even rotten whale. Whales. Some people also are insects and small animal like lizard that were easy to kill. Leatherman learned to make weapon with weapons. They could kill larger animal for meat. This early people has big appetite. If they killed an animal, they would drink the blood, eat meat, and chew on the bones. When they finished the meal, there was nothing left. At first, man wandered from place to place to find food, but when they began to grow plants, they stayed in one place and ate what they could do. They tamed animals, trained them to work, and killed them for meat. Life was a little better, but there was still not much variety in their meals. Day after day, people ate some foods. Gradually, when began to travel gather distance. The explorers who set
unknown seas found new lands, and these lands they found new food and spices and looked them back home. तो आपने देखा इस पैसेज में क्या कहा गया कि पहले मनुष्य किस प्रकार क्या क्या खाता था, फिर क्या इम्प्रूव किया, फिर क्या इम्प्रूव किया, तो ये कहा गया है। तो यही व्हाट, तो क्वेश्चन इससे क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड मैन ईट इफ देयर वाज स्टोर shortage of food, rotten wheels, bark of tree, the root of tree, of birds nest with a। तो अभी मैंने आपको बताया, तो bark of tree हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैन trained animal they made the animal dash for them, race, search, work या hunt। तो अभी आपने पैसेज में देखा वर्क, if man trained animal they made the animal work for them, okay। next question है, the phrase live on in the passage mean, live on means to eat certain kind of food in order to survive, to eat greedily, to eat anything that you ate given to it, या to depend on plants and foods for life childhood। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा टू eat certain kind of food in order to survive। नेक्स्ट है, at first man wandered from place to place to find food, then some of them began to stay in one place, why, because they began to grow plants and ate what they would grow। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, देखिए आप। नेक्स्ट है 37 to 38, इसमें फाइंड द पार्ट दैट्स हैज़ एन एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इफ द सेंटेंस फ्री फ्रॉम एरर यू आंसर डी। तो इफ was you, I wouldn't accept this project, no error। तो इसमें आपको किस में लग रहा है, तो ऑफ कोर्स नो एरर, नो एरर सभी सही है। इफ आई वाज, आई वुड not accept this project। next questions, the director along with his assistant have thoroughly examined the new proposal, नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा 38 का, इसमें देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो जो बी है हैव थॉरोली एग्जामिन्स इसमें है। नेक्स्ट है 39, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो इसमें बोल रहा है क्या, डिलीजेंट, डिजारियस, रिडिक्यूलस, डोमिनेंट। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, डिलीजेंट। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, इसको हम बोलेंगे डिलीजेंट, ठीक है। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन सेंटेंस, ऑपोजिट बताना है यानी उल्टा शब्द आपको बताना है। हीज बिहेवियर विद पीपल वाज ऑलवेज फ्रेंडली। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है जो फ्रेंडली है उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो फ्रेंडली का क्या हो जाएगा, चार्मिंग, हॉस्टाइल, कर्टेजियस एंड सिंसियर। तो इसका जो हो जाएगा हॉस्टाइल हो जाएगा, ओके, फ्रेंडली का हॉस्टाइल। नेक्स्ट है 41, fill in the blanks with the correct options to make the sentence clear, okay। A book is a essential, not a talked thing but a written thing, and written not with a view of mere dash but of dash। तो फ्रेंड्स इसमें जो अप्रोप्रिएट है ना, कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मेंस जो है अप्रोप्रिएट है, जो कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, तो 42 में बोल रहा है रीड द पोएम, पोएम दिया गया है 42 45 में, एंड उसका जो सही होगा उसको करना है। तो पोएम है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, perhaps the plaintive numbers flow for old and happy far off things,
and battle long ago? Or is it some more humbly familiar matter of today? Some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again. Whatever theme the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and oh, the sicker bending. I listened, motionless and still, and I mounted up the hill. The music in my heart I bore long after it was heard no more. ओके तो ये था पोएम जो मैंने आपको सुनाया। तो इससे क्वेश्चन देखिए बोल रहा है प्लेंटिव हियर मीन्स, यहाँ प्लेंटिव का मीनिंग क्या है? तो यहाँ प्लेंटिव का जो मीनिंग होगा क्या बोल रहा है, मोर mournful, joyful, longingful, languishing। तो यहाँ जो होगा mournful। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्बल ले मीन्स, तो हम्बल ले मीन्स होगा सिंपल सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर मीन I cried the memory of the song. This is the meaning. Familiar matter of today mean simple event of day to day. A unit of pronunciations having one vowel sound with or without surrounding consonant is called syllable, word, syntax या लेक्सिम। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका बताइए, syllable। A unit of pronunciations having one vowel sound with or without surrounding consonant is called syllable। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर commonly used dash may include class participations, demonstrations, recitations, memorizations, or a combination of this। teaching method, teaching skill, familiar example या ideal evaluations। तो क्या लगता है आपको? फर्स्ट होगा टीचिंग मेथड। बोल रहा है कॉमनली यूज टीचिंग मेथड में इंक्लूड क्लास पार्टिसिपेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, रिसिटेशंस, मेमोराइजेशंस और अ कम्बिनेशन ऑफ दिस। ओके टीचिंग मेथड में ही ये सारे चीज़ हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप एक बार लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप उस पर जो है ज्वाइन कर लीजिए। और एनीथिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप चाहो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो चलिए नेक्स्ट है 48 द प्रॉब्लम ऑफ speaking English can be solved by practicing, building confidence, reading and speaking more, all of the above। तो 48 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एव। प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश कैन बी सॉल्व। अगर आपको क्या होता है कि अगर इंग्लिश बोलने में आपको प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो क्या होता है कोई भी चीज़ अगर आपको करना है तो एट फर्स्ट जो होता है क्या होता है प्रैक्टिस, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस करके बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस रहो कि हाँ बिल्कुल मैं सीख सकती हूँ, मैं सीख गई हूँ। दिस रीडिंग एंड स्पीकिंग मोर, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीडिंग करो एंड बोलो, ठीक है, कोशिश करो। ये मत देखो कि क्या यार गलत बोल रही हूँ या लोग क्या सोचेंगे, ये सोचोगे तो फिर नहीं होगा। तो ये ऑब्वियसली ये सारा हो जाएगा।
नेक्स्ट है 49, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ टीचर इन टीचिंग इंग्लिश आर। जब एक टीचर टीचिंग करते हैं, ये देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपको किया गया है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होते हैं, है ना। बहुत तरह के क्या प्रॉब्लम आएगा जब वो इंग्लिश टीचिंग कर रहा है। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छी तरह से करवाया है, कॉन्सेप्ट वाइज हर समझाया। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, यूजीसी नेट पेपर 1 बोल के, उसमें मैंने करवाया है, तो आप एक बार उसको ज़रूर जाके देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, लैक ऑफ टीम वर्क एंड शव and support between student, lack of teaching aids, overcrowded classroom, all of the above। तो 49 का जो हो जाएगा वो क्या होगा, 49 का डी। बोला द प्रॉब्लम फेस बाय अ टीचर इन टीचिंग इंग्लिश आर लैक ऑफ टीम वर्क एंड सपोर्ट बिटवीन स्टूडेंट्स, लैक ऑफ टीचिंग एड्स, ओवर क्राउड क्लासरूम, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे प्रॉब्लम जो होता है वो एक जब इंग्लिश क्लास एक टीचर इंग्लिश करवाता है तो उनको फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन adherence of formal rule or literary meaning, scholar, pedant, pedagogy या लिटरेलिस्ट। तो 50 का जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, pedant, a person who insists on adherence to formal rule of literacy meaning pedant, the use of many words where only a few are needed. Next question, this the use of many words where only a few are needed, इसका जो हो जाएगा circumlocution, इसका मतलब होता है कटुतापूर्ण, है ना। द यूज ऑफ मैनी वर्ड वेयर ओनली अ फ्यू आर नीडेड, तो उसको हम circumlocution बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेन सेड, ओके, यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। नरेन सेड वाई आर यू स्टिल वेटिंग हेयर विनोद। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ए, नरेन आस्क्ड विनोद वाई ही was still waiting there। नेक्स्ट, यहाँ वही है, आइटम एंड फ्रेज पूछ रहा है। ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू डू ऑलवेज विथ देयर डिफरेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 53 का, तो व्यूडे द हैटचेट, worry the hatchet, the advise his friend to do away with their differences, का मीनिंग हो जाएगा worry the hatchet। Question 54, he has the ability to speak easily and pursues others with his word। तो इसका क्या होगा, गिफ्ट ऑफ द गोज, गिफ्ट ऑफ द हॉर्स, गिफ्ट ऑफ द गैप या गिफ्ट ऑफ लक। तो सी हो जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट, वी ऑल, देयर इज ओनली वन गॉड, ओके, वी आर नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, इट इज known to use all that there is only the one God, we have all known that there is only one God, only one God has been known by us all। तो इसका होगा बी, it is known to us all that there is only one God। He added up the money and found that it was correct। तो 56 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 56 का होगा द मनी वॉज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट,
Okay, you know that. A. Next question, India is a noble, gorgeous land teeming and dash natural weather which with of in. So with. India is a novel, gorgeous land teeming with natural wealth. Many diseases were formerly attributed as witchcraft. तो 58 का जो हो जाएगा 2 है ना, attributed to. Next, a method of teaching English grammar in which the language is taught not by rule but by us. Age is informal method, inductive method, deductive method, incidental or correlations method. क्या होगा फ्रेंड्स? इनफॉर्मल मेथड. क्या होगा? इनफॉर्मल. अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर in which the language is taught not by rule but by us. Age is informal method. ये लास्ट क्वेश्चन है. अ टेस्ट विच मेजर्स अ कैंडिडेट overall ability in a language and is not related to a specific course is proficiency test, achievement test, diagnostic test या prognostic test. तो 60 का हो जाएगा A. Proficiency test, a test which measures a candidate overall ability in language and is not related to a specific course is a proficiency test. तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यूज़फुल होगा. और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ये क्वेश्चंस जो है उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था टेट का, उसमें ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था. तो और जो जिन्होंने उत्तराखंड का एग्ज़ाम दिया था वो इस क्वेश्चन से उनको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और इन सारे क्वेश्चन का आंसर ये होगा फ्रेंड्स. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. थैंक यू.